We'll start with next question, that is question 15. A cylinder of capacity 20 liters is filled with H2 gas. The total average kinetic energy of translatory motion of its molecule is 1.5 into 10 power 5 joule. The pressure of hydrogen in the cylinder is. We have derived P is equal to 1 by 3 rho CRMS या फिर VRMS स्क्वायर. फिर हमने इसको लिखा था 1/3 मास पर यूनिट वॉल्यूम VRMS स्क्वायर. रिमेंबर ये वॉल्यूम है. फिर हमने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था. फिर हम लोगों ने इसको 3/2 PV इक्वल टू 1/2 MVRMS स्क्वायर लिखा था. फिर हमने बोला था ये काइनेटिक एनर्जी होता है E, बराबर. तो हमको प्रेशर पूछा है तो हमको ऑलरेडी हमारे पास है 3/2 PV इज इक्वल टू E. तो हमको P मिल जाएगा 2/3 E by V, where this V is volume, right? आ गया हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन. यस, 2/3 E की वैल्यू क्या है हमारे पास 1.5 इंटू 10 पावर 5. V की वैल्यू क्या है 20 लीटर्स को मीटर क्यूब में 10 पावर -3 लिखते हैं. मैंने पहले ही बताया था आपको, राइट. 1 जा 2 जा कैंसल कैंसल, तो ये आपका आ गया 10⁻⁵, नीचे 10⁻², ऊपर जाएगा तो 10⁻+7, 10⁻+7 1/2 मतलब 0.5, मतलब 5 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द प्रेशर. ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. A box containing n molecules of a perfect gas at temperature T1 and pressure P1. The number of molecules in the box is doubled, keeping the total kinetic energy of the gas same as before. हमने सिर्फ नंबर डबल किया है, kinetic energy सेम है. If the new pressure is P2 and temperature T2, then what is the relation between initial and final values of pressure and temperature? So to solve this question, the basic idea is that आपको पता होना चाहिए energy, kinetic energy is given by 3/2 NKT. Then according to the given condition, उन्होंने बोला है N2 is 2 times of N1 क्योंकि number of molecules हमने डबल कर दिए, और बोला है कि kinetic energy जो है वो सेम रखी है. We are not increasing or decreasing energy. So E1 equal to E2 मतलब 3/2 N1 K T1 equal to 3/2 N2 K T2, which means N1 T1 equal to N2 T2, which also implies, जिसका मैं यूज बाद में करूंगा, Nt is equal to constant. मैं लिख देता हूं. This is equation number, let us say 1. ये आया from equation number 1. We will be using this later also, right? Then what we know is N1 T1, N2 is 2 times of N1 T2. Cancel, therefore you have T2 is equal to T1/2. तो कम से कम आपको पता है कि टेम्परेचर इज गोइंग टू बिकम हाफ. तो ऑप्शन नंबर बी और डी में से एक आएगा. लेट्स टॉक अबाउट प्रेशर नाउ. हमको पता है Nt कांस्टेंट है. अब आप बोलोगे आइडियल गैस इक्वेशन विच इज PV इज इक्वल टू NKT, करेक्ट. क्योंकि n कांस्टेंट है, क्योंकि n ही कांस्टेंट है, n इंटू टी कांस्टेंट है, ये ध्यान देना. द प्रोडक्ट ऑफ Nt इज कांस्टेंट, नॉट ओनली n, बिकॉज ट्वाइस हो रहा है. तो आई कैन राइट दिस एज PV इज इक्वल टू KNT, but NT is constant, K is constant, therefore PV is constant. मतलब P1 V1 equal to P2 V2, but as you know we are not changing volume. इसका मतलब P1 equal to P2, so P1 equal to P2 and T2 is equal to T1/2. This is how you are supposed to solve this question.
Next question. An ideal gas is initially at temperature T and volume V. Its volume is increased by delta V due to an increase in temperature delta T. Pressure remaining constant. The quantity delta, small delta V upon V delta T varies with temperature S. So such questions you have to remember. Ideal gas जैसे बोला तो पहला तो PV is equal to RT for 1 mole of gas. फिर आप बोलोगे क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, फिर आप लिखोगे P डेल्टा V प्लस V डेल्टा P इक्वल टू R डेल्टा T. बट यहाँ पे बोला है प्रेशर कांस्टेंट है तो डेल्टा P 0 है, R तो वैसे भी कांस्टेंट होता है, therefore P डेल्टा V इज इक्वल टू R डेल्टा T. इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2. फिर हम लोग इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर लेंगे, फिर हमको मिल जाएगा P डेल्टा V अपॉन PV इक्वल टू R डेल्टा T बाई RT. PP कैंसल, RR कैंसल, तो आपको मिलेगा डेल्टा V बाई V इज इक्वल टू डेल्टा T बाई T. यहाँ से आपको मिलेगा डेल्टा V बाई V डेल्टा T 1 by T. This is nothing but small delta. So small delta is inversely proportional to temperature. So as temperature increases, delta decreases. Option number C. क्योंकि एक ही ऐसा ग्राफ है जहां पे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो डेल्टा कम हो रहा है. ओनली वन ग्राफ. यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे इंक्रीजिंग है, यहाँ पे भी इंक्रीजिंग है. So there's only one graph which is telling you that with increase in temperature, delta should decrease. Right. Next question. Carbon dioxide is a triatomic gas. Mean kinetic energy of 1 gram gas will be if N Avogadro number, K is Boltzmann constant, and molecular weight of CO2 is 44. So first thing that you need to know here is CO2 being a triatomic linear molecule, it has in total 7 degrees of freedom, 3 from translation, 2 from rotation, and 2 from vibration. So if you know that, so you will know that what is the energy of this particular molecule या फिर gas for n moles. 3 by 2, 3 by 2 नहीं, 7 by 2. 7 by 2 क्या लिखते हो? 7 by 2 RT into N. मैं N इसलिए लिख रहा हूं बिकॉज यहाँ पे 1 ग्राम की बात की है एंड स्मॉल n इज मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. 7 by 2 RT, राइट. R होता है N के, तो हम लोग लिख देंगे बाद में 1 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास और वेट CO2 का 44. 7 by 2 NKT. करेक्ट. तो ये आपको मिल गया E इज इक्वल टू 7 by 88 NKT. सो यू शुड गेट ऑप्शन नंबर D. तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन था. प्रोवाइडेड यू शुड नो अ ट्राइएटॉमिक लीनियर मॉलिक्यूल ऑलवेज हैज 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, 3 फ्रॉम ट्रांसलेशन, 2 फ्रॉम रोटेशन एंड 2 फ्रॉम वाइब्रेशन. तो ये पता होना चाहिए. H2O के लिए नहीं चलेगा बिकॉज H2O हैज 3 डिग्रीज ऑफ रोटेशनल फ्रीडम. तो H2O में ऐसा नहीं चलेगा. इट इज फॉर CO2. 1 mole of monoatomic ideal gas undergoes process from A to B. Process is a thermodynamic change in the system where the gas goes from some initial value of pressure, volume and temperature, either of it or two of it, to some new value. तो पहले बात तो thermodynamic process मतलब it is a change in the system, in the state of gas from some values of pressure, volume, temperature to some other values. Good.
right? So one mole of monatomic gas undergoes the process A to B in the given PV diagram. इसको indicator diagram भी बोलते हैं, right? The specific heat for this process is. So first thing is that you should know here as pressure is increasing, volume is increasing, या फिर as volume is increasing, pressure is also increasing. So it is not obeying Boyle's law at all. बिकॉज बोला भी नहीं है कहीं पे कि टेम्परेचर कांस्टेंट है. अगर बोला होता कि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो फिर बॉयल्स लॉ ओबे करना चाहिए था. सो इट इज नॉट एन आइसोथर्मल प्रोसेस. देन you should know that since volume is also expanding, we can apply first law of thermodynamics, which tells us that dq is du plus dw, right? Good. Then you should know that dq is in general nc dt, या फिर cp भी बोल सकते हो, doesn't matter really. Okay, ncv dt if you have n number of moles of gas. For one mole n की वैल्यू 1 हो जाएगी. करेक्ट. dw from indicator diagram is area under the curve, क्योंकि dw pdv होता है. करेक्ट. तो ये जो एरिया अंडर द कर्व होगा ये मुझे देगा वर्क डन. तो ये पता होना चाहिए था आपको. वर्क डन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंडिकेटर डायग्राम बाय एरिया अंडर द कर्व, राइट? यू शुड नो दिस. अब क्वेश्चन ये है कि चलो dw तो मैं निकाल लूंगा, पहले dw फाइंड करता हूं. इक्वेशन 1, dw is area under the curve, मतलब how do you find out area of this? नहीं तो फिर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो. अगर एरिया ऑफ ट्रापेजियम नहीं पता तो फिर दिस इज 2p0, दिस इज 3v0, मतलब 2p इंटू 3 कितना होता है? 2 और 3 6, है ना? तो ये जो एरिया है आपका ये आ गया 6p0v0. हाफ बेस इंटू हाइट, बेस आपका 3v0 है, हाइट आपका 4 माइनस 2 इज 2, है ना? मतलब 6p0v0 बाई 2. तो ये आ गया 3p0v0. करेक्ट. तो वर्क डन आपको मिल गया 6p0v0. क्लियर, राइट? वर्क डन कैसे निकाला? एरिया अंडर द कर्व. एरिया अंडर द कर्व कैसे निकालते हो? एक रेक्टेंगल है, ऊपर का ट्राइंगल है. रेक्टेंगल ये साइड कितना है? 3v0. ये साइड कितना है? 2p0. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आ गया? 6p0v0. ऊपर का ट्राइंगल है, ट्राइंगल कैसे निकालते हो? हाफ बेस इनटू हाइट. बेस कितना है? वापस से 3v0. हाइट कितना है? 2p0. ये जो साइड है ये 2p0 है, राइट? तो हाफ बेस इनटू हाइट, तो 6, हाँ 9 है टोटल. तो मैंने वहां लिखने में गलती की है. यस, तो इट इज टोटल, इन टोटल 9. So in total this is 9. I was writing 6p0v0 plus 3. So total 9. Total 9. Right? Good. तो आपको वर्क डन मिल गया. अब if I can find this, तो I can add two terms on the right hand side. How do I find this particular thing? And by the way, 1 mole of gas है तो n की वैल्यू 1 डाल दी. 1 mole of gas. How to find out Cv dt? How do you find out dt? That is the question here. So since this is, you have graph, तो dt आप ग्राफ से निकाल सकते हो. ग्राफ से dt मतलब टेम्परेचर एट B माइनस टेम्परेचर एट A. बट डू वी नो PV इज इक्वल टू, PV इज इक्वल टू कौन सा गैस है? आइडियल गैस. PV is equal to nRT, but n is 1, तो T is equal to PV by R.
मतलब टेम्परेचर एट ए इज प्रेशर एट पॉइंट ए, वॉल्यूम एट पॉइंट ए अपॉन आर। प्रेशर एट पॉइंट ए इज 2p0, है ना, वॉल्यूम इज v0, तो 2p0 v0 by r। टेम्परेचर एट b is pb vb by r। pb is 4p0 and vb is 64v0 again, तो 4p0 4v0 मतलब 16p0 v0 by r। समझा यहाँ तक सबको? क्लियर? गुड। तो कैन आई फाइंड आउट dt now? yes, because it is tb minus ta। तो 16 में से 2 गए तो 14 बचता है, 14p0 v0 by r। करेक्ट? यहां तक क्लियर? गुड। देन आपके पास वर्क डन है, आपके पास dt है। अगर मुझे cv पता लग गया तो काम हो गया। मोनो एटॉमिक गैस के लिए cv क्या होता है? 3/2 RT। करेक्ट? तो आपको मिल जाएगा cv dt इज इक्वल टू 3/2 R, 14p0 v0 by r, r cancel, 1 जा 7 जा, that is 21 p0 v0, equation number 3, right? So substituting 2 and 3 in 1, so substituting equation number 2 and 3 in 1, आपको मिल जाएगा c था यहाँ पे, c dt, c dt is equal to 9p0 v0 plus 21 p0 v0, है ना। cv dt आपने 21 निकाला और dw आपने 9 फाइंड किया। ठीक है, मैंने पहले वो लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता वैसा, इफ यू जस्ट, तो ये ऐसा है, ठीक है। गुड, अब ठीक, करेक्ट। देन हमें क्या बोला था फाइंड करने के लिए? सी, बराबर। गुड, सी dt हमने फाइंड किया कि नहीं? क्या था? 14 p0 v0 by r। ये 30 p0 v0 है, कैंसल कैंसल, राइट। तो दिस इज 30 by 14 r। व्हाट इज 30 by 14? 15 by 7, 15 by 7, ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसा आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। अभी थर्मोडायनामिक्स बाकी है, केटीजी पे है हम लोग, राइट। एक कर्व दिया है, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस बोला है, खत्म। फाइंड आउट स्पेसिफिक हीट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, देन यू शुड नो dq is cdt, du is cvdt, dw can be found out by area under the curve। dt कैसे निकालोगे? आइडियल गैस है तो pv इक्वल टू RT, तो T इज इक्वल टू pv बाई R। ए पॉइंट पे टेम्परेचर निकालो, बी पॉइंट पे निकालो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, देन इट शुड बी इन टर्म्स ऑफ p0 v0। आपको cvdt मिल गया, आपको dw मिल गया, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करो एंड देन सॉल्व, इट इज 15 by 7, राइट। तो ऐसा इसको सॉल्व करते हैं। गुड। इसका एक अल्टरनेट मेथड है, लेकिन फिर उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए होता है विच वी डोंट हैव, तो इसलिए वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, जब थर्मोडायनेमिक्स करेंगे तब मैं बता दूंगा। उसका अल्टरनेट मेथड है। इफ यू नो गामा, यू नो Cp by Cv इज गामा, तो अगर ये पता होगा तो सॉल्व हो जाएगा, तो हम देखेंगे बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, the total kinetic energy of all the molecules of helium having a volume V exerting a pressure P is 1500 joule, 1500 joule. The kinetic energy in joules of all the molecules of N2 having the same volume but exerting a pressure 2P is,
Let's see how we can solve this question. I will, for simplicity, will say helium, gas number 1, N2, gas number 2. मुझे पता है PV is equal to nRT, और n जो होता है वो होता है आपका नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर RT, करेक्ट? गुड. So P1, V1, N1, Avogadro number are T1, right? Have they said anything about temperature? नहीं. So we can assume it to be constant, right? P2, V2 equal to N2 by NART. Since they have said one thing here, that volume is same. Now if I take रेशो डिवाइड करूंगा तो P1 by P2 will be N1 by N2. और आपको एक चीज और बताई है that P1 is P and this is 2P. मतलब आपको पता लग गया कि नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो थे वो 2 टाइम्स ऑफ हीलियम. अभी ये N2 नाइट्रोजन है, ये N2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए मैं नंबर को N2 डैश और डैश 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 एंड डैश, राइट, जस्ट नॉट टू क्रिएट कंफ्यूजन. गुड. अब आपको ये बताना चाहिए हीलियम गैस ये मोनो एटॉमिक गैस होता है. इसका मतलब एनर्जी हीलियम का जब मैं लिखूंगा तो आई विल से n डैश 3/2 kT. अगर मैंने n डैश लिखा है मतलब k लिखना पड़ेगा. RT होता है फॉर 1 मोल, क्योंकि Na इंटू k इज R. यहाँ पे मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ. हर एक मॉलिक्यूल का कितना एनर्जी है, क्योंकि ये मोनो एटॉमिक है मतलब सिर्फ ट्रांसलेशन के 3 और हर एक के साथ हाफ केवीटी एनर्जी. गुड. ये किसका है, ये पहली गैस का हीलियम का. तो हीलियम मोनो एटॉमिक है, अगर ये पता नहीं होगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे. देन E2 क्या आएगा फिर, N2 डैश, बराबर. और हर एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का एनर्जी 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. क्यों? क्योंकि ये डायटोमिक है. 5/2 kT. अब इसे डिवाइड करो, खत्म. तो E2 by E1 मैं करता हूं तो N2 डैश अपॉन N1 डैश और 5/2 अपॉन 3/2 मतलब 5/3. बट N2 डैश अपॉन N1 डैश हमने यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ना, ये N2 डैश अपॉन N1 डैश इज 2. तो E2 by E1 is equal to 2 into 5/3. और ये E1 को मैं वहां पे अगर ले जाऊंगा तो 10/3 E1, तो ये आपको मिल जाएगा 10/3 E1. तो 10/3 E1. और E1 की वैल्यू कितनी बोली है, 1500. 1500/3 कितना होता है, 500 इंटू 10 कितना होता है, 5000 जूल. 10/3 इंटू 1500 तो 500 इंटू 10 5000 जूल. हो गया क्वेश्चन सॉल्व, राइट. Was there a shortcut? Yes, there was a shortcut. But ultimately सारे फॉर्मूलाज यूज करने ही पड़ेंगे. तो just not to get confused, क्योंकि मैं बता सकता हूँ यहाँ पे I can tell you
मैं बोलूंगा देखो E इज प्रोपोर्शनल टू N बट N इज प्रोपोर्शनल टू P, फिर आप E2 by E1 इक्वल टू P2 by P1 करोगे, विच इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग? एक मोनोएटॉमिक है, एक डायटॉमिक है, तो ऐसा करने का नहीं है ना। अगर ऐसा किया तो गए काम से। मेथड गलत नहीं है, एक डायटॉमिक है, एक मोनोएटॉमिक है, इसलिए डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी के साथ नहीं करना है क्वेश्चन सॉल्व। अदरवाइज यू विल से हाँ यहाँ से P इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यहाँ से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, तो हो गया एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, गुड, करेक्ट। बट फॉर इफ यू हैव सेम टाइप ऑफ गैस, here one is monatomic, other is diatomic. Next question. An ideal gas gamma 1.5 is expanded adiabatically. How many times has the gas to be expanded to reduce the root mean velocity of molecules 2 times? Since adiabatic expansion I have not explained you, मैं अभी बता देता हूँ, कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर देते हैं, वो फिर थर्मोडायनेमिक्स में वापस हो ही जाएगा। So what is adiabatic expansion? So before I go to what is adiabatic process or expansion, you should know a thermodynamic process can be categorized into different subcategories. जैसे पहला isothermal. Isothermal में क्या होता है? Temperature remains constant, right? Good. I want something more. ये सिर्फ temperature constant बोल के मुझे नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? अब मुझे बात बताओ। I have two systems. ये एक सिस्टम है, यहाँ पे एक पिस्टन है। अब इस पिस्टन को मैं ऊपर या नीचे मूव कर सकता हूँ। इसका जो वॉल है ये कंडक्टिंग वॉल है। मेरे पास और एक सिस्टम है, इसका जो वॉल है वो नॉन कंडक्टिंग वॉल है। पिस्टन भी नॉन कंडक्टिंग है, इसका भी पिस्टन में ऊपर नीचे कर सकता हूँ, राइट। सो इंसुलेटिंग वॉल, वैसे इसमें से एक को डायथर्मल वॉल बोलते हैं, बट ठीक है, एट दिस स्टेज वी डोंट नीड टू नो different types of walls. Now, which of these two process, मैं दोनों केस में पिस्टन को नीचे दबा रहा हूँ, which of these two process will be isothermal, same temperature process? Remember, पहले में कंडक्टिंग वॉल है, दूसरे में इंसुलेटिंग वॉल है। ए, जिन्होंने ए बोला है, यू हैव टू एक्सप्लेन मी व्हाई। क्योंकि सिर्फ टेम्परेचर सेम होगा, यानी P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होगा उसमें। पार्शियली करेक्ट, योर आंसर इज राइट, बाकी सब गलत हो, बट व्हाई? जब मैं पिस्टन को नीचे प्रेस करूंगा, आई एम डिक्रीजिंग वॉल्यूम, या फिर मैं बोल सकता हूँ इंक्रीजिंग प्रेशर, बट इफ आई इंक्रीज प्रेशर, टेम्परेचर आल्सो इंक्रीजेस। इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस, द एक्स्ट्रा हीट, क्योंकि मैं वर्क डन कर रहा हूँ, वो वर्क डन कहीं तो जाएगा, इट मे बी कन्वर्टेड इनटू हीट, बिकॉज the gas which is called as working system, working substance भी बोलते हैं उसको, गैस को। मैंने वर्क डन कर दिया, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कहाँ गया? गैस के पास गया। गैस क्या करेगा? एनर्जी बढ़ा लेगा, मतलब एनर्जी बढ़ेगा मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन आइसोथर्मल रखना है सिस्टम को, मतलब जो वॉल्स है वो कंडक्टिंग होंगे, तो ही जो एक्स्ट्रा एनर्जी आ रहा है फ्रॉम वर्क डन, इट विल बी गिवन ऑफ टू द सराउंडिंग। So for the system, for the process to be isothermal, walls should be conducting. Clear? नहीं तो फिर wall conduct ही नहीं कर रहा है, heat can neither
कम इनसाइड नॉर गो आउट, टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, फिर उसको बोलते हो एडियाबैटिक प्रोसेस। व्हेन dq is 0, here dt is 0। आइसोथर्मल, एडियाबैटिक। आइसोथर्मल में PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ओबे होता है, एडियाबैटिक में PV रेज टू गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट ओबे होता है। और एडियाबैटिक के कौन कौन से टाइप, या तो वॉल्स जो है वो इंसुलेटर हो, मतलब द सिस्टम इज आइसोलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग, या फिर द प्रोसेस हैज टू बी सडन कंप्रेशन, सडन एक्सपांशन। क्यों? गैस को टाइम ही नहीं मिला एक्सचेंज करने के लिए हीट, इवन दो वॉल्स भले ही कंडक्टिंग हो, बट सडन एक्सपेंशन, मैंने एकदम से पिस्टन को ऊपर खींच लिया या फिर एकदम से गैस को नीचे प्रेस कर दिया, गैस को टाइम ही नहीं दिया सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज करने के लिए। सो सडन प्रोसेसेस एंड आइसोलेटेड प्रोसेसेस आर एडियाबैटिक। क्वासी स्टैटिक सुना है क्या नाम? क्वासी स्टैटिक सुना होगा थर्मोडायनामिक्स में। क्वासी स्टैटिक वेरी स्लो प्रोसेसेस आर नॉर्मली आइसोथर्मल, राइट? आपकी गाड़ी चला के आए, फिर खड़ी कर दी, गलती से साइलेंसर को पाव लग गया, यू फील हीट। क्यों? द सिस्टम इज गिविंग ऑफ हीट टू द सराउंडिंग, है ना? तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। एनीवेज, और दो टाइप के प्रोसेस है, आइसोकोरिक, आइसोबारिक। Isochoric is a process volume is constant. which takes place at constant volume, मतलब I cannot show piston there, मुझे फिक्स दिखाना पड़ेगा। And isobaric is at constant pressure। तो हमें अभी इस क्वेश्चन में गामा दिया है, एडियाबैटिक एक्सपांशन बोला है, हाउ मेनी टाइम्स द गैस हैज टू बी एक्सपैंडेड टू रिड्यूस, क्या रिड्यूस करना है? VRMS रिड्यूस करना है, करेक्ट? नाउ we know that VRMS is proportional to under root of T because it is 3/2 3/2 3 RT by M होता है, 3/2 नहीं होता है वो, 3 RT/M, 3 कांस्टेंट, R कांस्टेंट, M भी कांस्टेंट क्योंकि सेम ही गैस है, राइट? करेक्ट। For adiabatic expansion, what we know is, हमको ये पता है for adiabatic expansion that PV raised to gamma is constant, but I don't care for pressure here because मुझे बोला है VRMS को अगर 2 टाइम्स करना है तो कितना टाइम्स एक्सपैंड करना पड़ेगा, मतलब आई केयर फॉर V बट V रिलेट्स टू T एंड एक्सपेंशन क्वेश्चन में पूछा ही है हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टू एक्सपैंड, मतलब वॉल्यूम तो चाहिए। आई कैन गेट रिड ऑफ प्रेशर, कैसे प्रेशर को हटाओगे? PV इज इक्वल टू RT, बराबर? तो यहां से आपको मिलेगा P इज इक्वल टू RT बाई V, क्योंकि मुझे प्रेशर नहीं चाहिए इसलिए मैंने प्रेशर को हटाया यहाँ से, फिर मैं ये यहाँ सब्सटीट्यूट करूंगा, फिर मुझे मिलेगा RT बाई V, V रेज टू गामा इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, मतलब मुझे मिलेगा RT V रेज टू गामा -1, क्योंकि ये 1 जाके ऊपर माइनस होगा, इक्वल टू कांस्टेंट, फिर कांस्टेंट बाय कांस्टेंट इज अनदर कांस्टेंट, तो मतलब फाइनली यू हैव TV raised to gamma -1 as the constant, correct? Right, then you have a relation between VRMS and T, and then you have a relation between T and volume, right? How many times the gas has the gas to be expanded to reduce बोला है, reduce मतलब आपको ऐसा बोला है VRMS2 is equal to VRMS1/2, रिड्यूस बोला है ना, 2 टाइम्स रिड्यूस करना, इंक्रीज नहीं, रिड्यूस बोला है, तो मैं डायरेक्टली लिख लूंगा इसको, मैं बोलूंगा कि गिवन कंडीशन में ऐसा दिया हुआ है। क्लियर यहां तक?
good, which also means this is the ratio of T2 by T1. Is that clear? Right? So which also means from here that आप देख रहे हो, मैं लिख सकता हूं इसको, if I take ratio I will say T2 by T1 is equal to V1 by V2 raised to gamma minus 1. क्यों? क्योंकि TV raised to gamma minus 1 कांस्टेंट, मतलब क्या? T is inversely proportional to 1 upon gamma V raised to gamma minus 1. Clear? Right. So then what is gamma? 1.5 minus 1 is 0.5, मतलब 1/2. इसका मतलब आपको T2 by T1 is equal to V1 by V2 raised to half आया, राइट? स्क्वायर कर लो तो T2 by T1 का स्क्वायर is equal to V1 by V2, but T2 by T1 was 1/4 है ना, but T2 by T1 ये था अंडर रूट ऑफ T2 by T1 था 1/2 if I am not wrong. तो स्क्वायर करूंगा, उसका भी स्क्वायर करूंगा, तो ठीक है, T2 by T1 is 1/4. अभी ये 1/4 का भी स्क्वायर होगा, राइट? कैलकुलेशन पे ध्यान दो, है ना? तो बिकॉज T2 by T1 is 1/4, उसका भी स्क्वायर, तो V1 by V2, तो V2 is equal to 4 square 16 times of V1, 16 times of V1, 16 times of V1. Correct? Does a shortcut exist? Yes, it exists provided that you know basics, क्योंकि ऐसा था method number 2. VRMS is proportional to T, which means VRMS square is proportional to T and T is proportional to 1 upon V raised to gamma minus 1. Correct? Right. तो ये यहीं पे, और ये V है वेलोसिटी, ये V है वॉल्यूम, है ना? तो डायरेक्टली बोल सकते थे VRMS VRMS 2 upon VRMS 1 whole square is equal to volume 1 by volume 2 raised to gamma minus 1. Correct? Then VRMS 2 by 1 अभी मैंने बताया हाफ था, है ना? 1/2 raised to 4. ये आपका आया वॉल्यूम 1 by वॉल्यूम 2, है वही, सिर्फ मैं स्टेप स्किप कर रहा हूँ. gamma 1.5 minus 1 is half. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, 1/2 का स्क्वायर मतलब 4, तो 2 raised to 4 is 16, तो ये आ गया इक्वल टू V1 by V2, तो V2 is 16 times of V1, तो वही है, राइट? क्लियर? एनी डाउट्स हियर? तो आइडियाबैटिक प्रोसेस क्या है ये पता लग गया अब आपको. So next question, a closed vessel contains 8 gram of oxygen, 7 gram of nitrogen. The total pressure is 10 atmospheric pressure at a given temperature. If now oxygen is absorbed by introducing a suitable absorbent, the pressure of the remaining gas in ATM will be. So from Dalton's law, we know total initial pressure will be because of oxygen and plus nitrogen. मैं ये O और N लिखना मुझे पसंद नहीं है, P1 plus P2.
We already know from ideal gas equation that P is nRT by B. अब सिर्फ ऐसा है कि N1 टेम्परेचर सेम उन्होंने बोला है एट अ गिवन टेम्परेचर सेम वेसल है, तो ऐसा हो सकता है कि सेम वेसल में एक गैस के लिए टेम्परेचर T1 हो दूसरी जगह T2 हो, नहीं हो सकता है, राइट। और वॉल्यूम अलग अलग हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि सेम वेसल है। तो प्लस N2 RT by V, गुड। तो इनिशियल प्रेशर, number of moles you can find from mass and molecular weight. Mass upon molecular weight RT by V. I will keep this outside, I don't like. Constants should go, common factors should go outside, N1 plus N2. Initial pressure 10 atm है, RT by V, RT by V, और N1 is M1 by capital M1 and N2 is small m2 by capital M2. Ten RT by V, 8 grams. Molecular weight of oxygen is 32. 16 and 16 O2 gas होता है वो. M2 is 7. 28. Sure? Yes. 44. 28. Exactly. So you just need to 1 जा 4 जा 1 जा 4 जा 1 by 2, तो ये आ जाएगा 2 into 10 equal to RT by V। मतलब आपको सिर्फ यहां से RT by V की वैल्यू भी मिल गई तो सफिशिएंट है। क्यों? अब फाइनल केस में जब हमने ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया है तो यू विल हैव ओनली प्रेशर फ्रॉम नाइट्रोजन, दैट विल बी ओनली N2 RT by V। N2 अभी आपने निकाला, यहाँ पे क्या निकाला? 7 by 28 मतलब 1 by 4, और RT by V कितना है? 20 है, मतलब 1 by 4 of 20 is how much? 5। तो प्रेशर इज 5, क्योंकि ऑक्सीजन हमने एब्जॉर्ब कर लिया, तो अभी सिर्फ नाइट्रोजन प्रेशर एक्सर्ट करेगा, राइट। नाउ लिख दो यहाँ पे चाहिए तो, सिंस ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड, ओके, राइट। तो ऐसा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट, certain amount of an ideal gas are contained in a closed vessel. The vessel is moving with a constant velocity v. The molecular mass of gas is capital M. The rise in temperature of the gas when the vessel is stopped, suddenly stopped, very good, is how much? So this question can be solved like, the kinetic energy of the moving gas will be converted to, as I told you, it will be converted to where? It will be converted to internal energy, delta U of it du, that is half mv square, राइट। अभी कैपिटल M लिख दो, कैपिटल M उन्होंने बोला है v स्क्वायर, दिस इज cv dt, delta t, correct। Then if you know Myers relation, Cp is equal to Cv plus R, बराबर। तो हमको अगर Cv को इन टर्म्स ऑफ ग्यामा लाना है तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे? हाउ टू ब्रिंग इन टर्म्स ऑफ ग्यामा हियर, तो डिवाइड बाय, अच्छा अगर मैं Cv से डिवाइड ही कर लेता हूं तो ये आ जाएगा 1 प्लस R बाय Cv, दिस इज ग्यामा 1 माइनस R बाय Cv, तो प्लस है यहाँ पे, तो विच मीन्स ग्यामा माइनस 1 इक्वल टू R बाय Cv, तो Cv इज इक्वल टू R अपॉन ग्यामा माइनस
1। तो ये था आपका डिसाइडिंग फैक्टर कि ऑप्शन नंबर बी आएगा, जो कि गामा माइनस 1 है, राइट। फिर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप बोलोगे, from 1 and 2 half mv square is equal to cv, which is r upon gamma minus 1 delta t. So therefore you will have delta t equal to mv square gamma minus 1 upon 2 times of r। हो गया ऑप्शन नंबर बी, आ गया आपका आंसर। तो सिर्फ आपको मायर्स रिलेशन से आपको सीवी इन टर्म्स ऑफ आर एंड गामा लिखना था। दैट्स इट। सिर्फ सीपी इक्वल टू सीवी बाय प्लस आर को मैंने सीवी से डिवाइड कर दिया, एंड यू हैव सीवी एज आर अपॉन गामा माइनस 1, एंड देन जस्ट बाय इक्वेशन नंबर 1 आप इक्वेशन 2 को बाद में सब्स्टिट्यूट कर दोगे, मिल गया आपको। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व सच क्वेश्चन, सिंपल था। नेक्स्ट, two identical bulbs are interconnected by a thin glass tube. A gas is filled in these bulbs at normal temperature pressure. पहले गैस फिल कर लिया, उसके बाद एक बल्ब को हमने आइस में रखा है, एक बल्ब को हमने हॉट बाथ में रखा है। Then the pressure of the gas becomes 1.5 times, right? The temperature of the hot bath will be, जब हमने फिल किया तो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर मतलब दोनों में 1 atm 1 atm था। अब एक को हमने रख दिया आइस में, दूसरे को रख दिया हॉट बाथ में, राइट। देन द प्रेशर ऑफ द गैस बिकम्स 1.5 टाइम्स, तो P2 is 1.5 times of P1. The temperature of the hot bath will be, so since the quantity of gas remains constant, quantity of gas remains constant, so we can write number of initial moles equal to number of final moles। मतलब N1 plus N2, ये बल्ब 1 है, ये बल्ब 2 ऐसा मान लेते हैं, इक्वल टू N1 डैश प्लस N2 डैश। दिस इज PV by RT, लेकिन इनिशियल T कितना था, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर 273, प्लस PV by R 273 इक्वल टू N1 डैश 1.5P, क्योंकि बोला है ऐसा अरेंजमेंट करने के बाद प्रेशर 1.5 होगा, वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा। R और आइस मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब वापस से 273, गुड, प्लस 1.5P V, R और T ऑफ हॉट बाथ फाइंड करना है, फाइंड करना है, वो T2 फाइंड करना है फाइनल केस में। तो अभी यहां से क्या दिखता है हमको, यहां से ये दिखता है कि मैं PV by R निकाल के हटा सकता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड पे बचेगा 2/273, क्योंकि PV by R कैंसिल हो गया। यहाँ पे बचेगा 1.5 अपॉन 273, यहाँ बचेगा 1.5, चाहिए तो वो भी कॉमन निकाल लो, ठीक है। तो 1.5 भी मैं कॉमन निकाल लेता हूँ 1/273 इफ यू वांट, इफ यू डोंट वांट मैं तो नहीं करूंगा, बिकॉज कैलकुलेशन विल बी सिंपल फॉर मी हियर। 1.5 बाय T2, तो मैं सिर्फ सब्ट्रैक्ट करूंगा इसको, तो 2 minus 1.5 इज 0.5 हाफ, 273 का डबल, 250 plus 250 500 और 23 plus 23 46, 546। तो यहाँ पे आ गया आपका 1/546 इक्वल टू 1.5 T2। तो फिर आपको यहाँ पे T2 1.5 into 546, that should be 819, ना, 1.5 into 546, 3/2, 819,
819 मिल जाएगा आपको केल्विन में, राइट। -273 मतलब 546, तो 546 डिग्री सेल्सियस। 1.5 को आई टेक इट लाइक 3/2, तो इजी है। 3/2 करने से मेरा आंसर एक्चुअली इससे बहुत पहले खत्म हो सकता है। कैसे? आई टेल यू कैसे। तो फॉरगेट अबाउट दिस स्टेप। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमको ऑलरेडी पता है दिस इज 1/2 है ना, 0.5। 2 - 1.5 इज हाउ मच? 0.5 मतलब हाफ, बराबर अपॉन 273। और ये 1.5 मतलब गया गया 273 इंटू 3, ईजी है। 250 इंटू 3 इज 750, 23 इंटू 3 इज अगेन 69। 750 में 69 ऐड कर दिए तो 819 केल्विन, तो दैट इज 546 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए फ्रैक्शन मत रखो, उड़ा दो उसको, जस्ट फॉर 1.5 is 3/2। This is how you can solve this question। नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट था, राइट। उसके बाद प्रेशर चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स विल बी कांस्टेंट, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। और ऐसा होना भी चाहिए। क्यों ऐसा होना चाहिए? व्हाई आई एम राइटिंग दिस, ये क्यों लिखा? थिंक ऑफ अ सिचुएशन, हमने दो बल्ब लिए हैं, दोनों बल्ब में हमने गैस भर दिया है, एक में N1 मोल्स, एक में N2 मोल्स, दोनों को कनेक्ट कर दिया। विल गैस फ्रॉम वन बल्ब टू फ्लो फ्रॉम वन टू अदर? नहीं। क्यों नहीं? यू नीड प्रेशर डिफरेंस, फ्लो नहीं होगा, नहीं होगा ना। अब एक को हॉट बाथ में रखा, टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, करेक्ट। देयर कैन बी इवापोरेशन, ऑलरेडी गैस है, लेकिन ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीजिंग। व्हाट डज दैट मीन? प्रेशर इंक्रीजेस। प्रेशर इंक्रीजेस मतलब क्या? रैंडमनेस ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। तो हॉट बाथ से कहां जाएंगे? हाई प्रेशर से कहां जाएंगे? लो प्रेशर। लो प्रेशर कहां पे है? आइस में। इसका मतलब ज्यादा, अभी अगर आइस में रखा है तो लिक्विफिकेशन होना चाहिए ना, तो नंबर ऑफ मोल्स विल बी लेस इन हॉट बाथ नाउ। हॉट बाथ में नंबर ऑफ मोल्स विल बी लेस, क्योंकि ट्रांसफर हो गया, वो कोल्ड की तरफ चले गया। दिस इज हाउ यू नीड टू थिंक, ओके। तो दैट्स व्हाई दिस इक्वेशन वी कैन राइट, और यहां से सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, roll number 8, be ready। An ideal gas having molar specific heat at constant volume CV. It is undergoing a process where temperature is varying as T equal to T0 e raised to alpha V. Alpha is a constant, V is volume occupied by the gas. Molar specific heat of the gas, molar. So there are two types of specific heats: principal specific heat and molar specific heat। Principal specific heat मतलब for unit mass, the amount of heat required to raise the temperature of unit mass of gas by 1 degree Celsius, constant volume होगा तो उसको बोलेंगे प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर मैं यूनिट मास की जगह, मतलब 1 किलोग्राम की जगह मैं 1 मोल बोलता हूं, वो जाता है मोलर स्पेसिफिक हीट, राइट। तो मोलर स्पेसिफिक हीट of the gas for the given process as a function of volume is given by, the gas is undergoing a process in which temperature varies as a function of volume। वॉल्यूम चेंज होने का मतलब सीधा सीधा है that dq will be du plus dw। उसका सीधा सीधा मतलब आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया था, NCDT इज इक्वल टू, इसको CP भी लिख सकते हो, मैंने पहले भी बताया, मैंने NCVDT plus TdV, right। Okay, we have temperature as a function of volume, और हमको dt लगने वाला है यहाँ पे, मतलब आई विल टेक डेरिवेटिव ऑफ टेम्परेचर
तो डेरिवेटिव ऑफ टेम्प अगर चाहिए तो विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो फिर आप बोलोगे डी डी वी ऑफ टी, टी क्या है, टी जीरो ई रेज टू अल्फा वी, राइट। फिर आप बोलोगे डी टी बाई टी वी इज इक्वल टू टी जीरो कॉन्स्टेंट, ई रेज टू अल्फा वी का डेरिवेटिव ई रेज टू अल्फा वी ही होता है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल जो होता है उसका। नहीं याद होगा क्योंकि मैथमेटिक्स नहीं करते हो। डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एफ ऑफ एक्स इज ई रेज टू एफ ऑफ एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। वही अप्लाई कर रहा हूं मैं यहाँ पे, सिर्फ एक्स यहाँ पे वी है और यहाँ पे फंक्शन ऑफ वी है, अल्फा वी है, मतलब ये एफ ऑफ वी अल्फा वी है, दैट्स इट। So I am applying the same thing, same formula, which I am telling you here is the same thing. So you will have dt by dv, t e0 alpha v or alpha constant outside, dv by dv is 1, तो alpha, ये तो लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी मेरे हिसाब से, मैं सीधा बोल देता dt is equal to t0 alpha e raised to alpha v dv, खत्म बात। मैथमेटिक्स शुड बी एट दिस लेवल, ओके, इस लेवल पे होना चाहिए, नहीं है तो कर लो। सो एंड डोंट वरी, मैं मैथमेटिक्स के लिए अलग से 3 सेशन लेता हूं, बट राइट व्हेन इज द करेक्ट टाइम। सो गुड इनफ। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, अब आप एन सी डी टी आपने अभी लिखा टी जीरो अल्फा ई रेज टू अल्फा वी डी वी इज इक्वल टू एन सी वी डी टी टी जीरो अल्फा ई रेज टू अल्फा वी डी वी प्लस क्या था पी डी वी। पी क्या होता है, आर टी बाई वी, एन आर टी बाई वी डी वी, करेक्ट, क्लियर। आई कैन कैंसल आउट, अभी नहीं, नेक्स्ट स्टेप में कैंसल करूंगा मैं। एन सी टी जीरो अल्फा ई रेज टू अल्फा वी डी वी इक्वल टू एन सी वी टी जीरो ई रेज टू अल्फा वी डी वी प्लस एन आर बाई वी, बट टी इज टी जीरो ई रेज टू अल्फा वी, बराबर। यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा अल्फा लिखना भूल गया, तो लिख देते हैं इंटू डी वी। अभी टी जीरो ई रेज टू अल्फा वी एन और डी वी हर जगह पे है, एन भी है, टी जीरो भी है, ई रेज टू अल्फा वी भी है और डी वी भी है। एन यहाँ पे भी है, टी जीरो यहाँ पे भी है, अल्फा ई रेज टू अल्फा वी यहाँ भी है, डी वी भी है। अभी क्या बचा फिर, सी टाइम्स ऑफ अल्फा इज इक्वल टू सी वी टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस आर बाई बी डिवाइड बाय अल्फा। तो C इज इक्वल टू सी वी प्लस आर बाय अल्फा वी। ऑप्शन नंबर बी, सी वी प्लस आर बाय अल्फा पी। तो ऐसा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, राइट। Two cylinders A and B fitted with pistons contain equal amount of ideal diatomic gas at 300 Kelvin. The piston of A is free to move while that of B is held fixed. The same amount of heat is given to the gas in each cylinder. If the rise in temperature of the gas in A is 30, then the rise of temperature in B is how much? Okay. So according to the question, for A cylinder क्या बोला है, free to move,
है ना, करेक्ट, फ्री टू मूव मतलब वॉल्यूम चेंज हो सकता है यहाँ, राइट। बी सिलेंडर में फिक्स है, राइट, ओके। देन इफ ए, as she said, A processes what? Isobaric, मतलब डेल्टा Q ऑफ A इज इक्वल टू डेल्टा Q ऑफ B, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है सेम अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन टू बोथ, बट दिस प्रोसेस वाज isobaric and this process was isochoric, है ना, आइसोकोरिक। ठीक है, अभी आगे बताओ मेरे को, व्हाट इज डेल्टा क्यू, व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? यस, तो डेल्टा क्यू इज एन सी पी, क्योंकि आइसोबारिक प्रोसेस में कांस्टेंट होता है। एनसीपी क्या लिखूं इसके आगे मैं, डेल्टा टी ऑफ ए, एंड आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो एन सी बी डेल्टा टी ऑफ बी। एन एन गया क्योंकि इक्वल अमाउंट्स बोले थे। राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ गैस पी, मतलब डेल्टा टी बी इज इक्वल टू सी पी बाय सी बी डेल्टा टी ऑफ ए, but Cp by Cv is gamma. What is gamma for diatomic gas? 7/5 delta T of A कितना बोला है? 30, 1 जा 6 जा 6 7 जा 42 केल्विन। तो एक प्रोसेस आइसोबारिक है, दूसरा प्रोसेस आइसोकोरिक है। आइसोबारिक के लिए NCP/DT, आइसोकोरिक के लिए NCB/DT। देन सिंपल हो गया, सॉल्व, खत्म। So we will stop here and we'll be continuing this point onwards in the next